Hello students, good morning. Myself Dr. D.K. Sinha with today's topic nervous tissue or neural tissue. Nervous tissue or neural tissue is ectodermal in origin. Means originates from ectoderm. Okay. It receive a stimulus and conduct impulse for control and coordination of body organs. It means all types of activities, all body activities are controlled with the help of neural tissue or nervous tissue. Generally, you know, brain and a spinal cord are the controller of our body that controls different types of body activities of animal body, and brain and spinal cord consist of nervous tissue. So nervous tissue is responsible for the control and coordination of all types of body activities. In nervous tissue, intercellular fluid means extracellular fluid is absent. सेल के बाहर कोई फ्लूइड नहीं होता है. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज absent and power of division, regeneration also absent in cells of nervous tissue. Okay, so extracellular matrix absent, power of division and regeneration also absent. अगर किसी कारण से नर्वस टिश्यू, नर्व सेल डैमेज हो गया तो फिर से उसका रिफॉर्मेशन नहीं होता है. वह डिवाइड करके अपने आप नया सेल्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है. सो power of division and regeneration also absent. Nervous tissue consists by combination of more than one cells. First cell, neuron, also called nerve cell. न्यूरॉन और नर्व सेल. ओके. सेकेंड, एपेंडिमल सेल. थर्ड, न्यूरोगिलिया एंड न्यूरोसिक्रेटरी सेल. न्यूरोगिलिया के साथ एक और सेल देख लें, न्यूरोगिलिया एंड स्वान सेल. न्यूरोगिलिया एंड स्वान cells are commonly called packing cell. This is called packing cell because Neurogilia and swan cell helps in packaging of nerves. So these are called packing cell. इसका नाम क्या देते हैं? Packing cell. Next, first we know neuron, also called nerve cell. It is the longest cell of body.
Okay, nerve cell or neuron consist of mainly two parts. One is called cell body, other is called cell processes. Cell body or cell processes. Cell body also called cyton, while cell processes is called nucleitis. Cell body, cyton, cell processes, nucleitis. Cell processes is of two types: dendron and axon. It means nerve cell consists of mainly three parts: first cyton, second dendron, and third axon. ठीक है? Now see the structure of nerve cell. First cell body and second cell processes. Okay, cell process also called neurites. Also called neurites. It is of two types: dendron and axon. Now see, cyton is the main cell body of nerve cell. Main cell body of nerve cell is called cyton. It contains uninucleated cytoplasm. In cyton, in cell of neuron, only one nucleus is present. Okay, जैसे अगर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर का जो भी पार्ट है, दिस इज कॉल्ड cyton. So cyton is also called perikaryon. Peri means surroundings in peripheral part. Karyon means nucleus. Part present around the nucleus is called perikaryon or cyton. Okay, in cyton all cell organelles except centriole are present. All cell organelles except centrioles, centriole absent होता है, and due to absence of centriole it is not able to divide. Due to absence of centriole not able to divide. It means सेल डिवीजन की कैपेसिटी इसमें नहीं होता है. इसके अलावे इन साइटोन सम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स एंड सम फाइब्रस स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड निसल ग्रैनुल्स, फाइब्रस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड न्यूरोफाइब्रिल्स. इन साइटोप्लाज्म ऑफ साइटोन, इन साइटोप्लाज्म Nisl granules and fibrous structure, neurofibrils are present. Fibrous structure called neurofibrils, granular structure called Nisl granules. Okay. Now see the structure of neuron.
दिस इज साइटोन, एक्सॉन. एक्सॉन प्लस डेंड्रॉन कॉमनली कॉल्ड न्यूट्राइट्स. इन साइटोन single nucleus centrally located nucleus is present filled with neuroplasm, okay, and in neuroplasm granular structure present called Nissl granules. Nissl granules are present in cyton and dendron, okay. Some filamentous fiber like structure present in cyton called neurofibril. This is dendron. Branches emerge out from dendron is called dendrites. Clear? Now this is axon. Axon is also filled with fluidy materials. Fluidy material present in axon is called exoplasm. Axon का fluidy material क्या कहलाएगा? exoplasm कहलाएगा. ठीक है? exoplasm. And in exoplasm filamentous structures are present. It means neurofibrils are present. Neurofibrils are present in axon, but Nissl granules are not present or absent in axons. ठीक है. Axon is covered by two layers. अंदर की तरफ होगा माइलिन शीथ और बाहर की तरफ होगा न्यूरिलेमा. न्यूरिलेमा मीन्स प्लाज्मा लेमा ऑफ नर्व सेल, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल. ठीक है. Myelin sheath and neurilemma is formed by a special cell that is called Schwann cell. ये दोनों किससे बना होता है? तो consist of Schwann cell. Schwann cell का बना होगा and Schwann cell is tubular structure. This like अगर यहाँ सेंट्रली लोकेटेड हम कर दें एक्सॉन, सपोज एट दिस इज एक्सॉन, सेंट्रली लोकेटेड एक्सॉन, और एक्सॉन के चारों तरफ सेल होगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस लाइक. दिस लाइक सेल, दिस इज स्वान सेल. अब स्वान सेल में बाहर की तरफ का लेयर की बात करेंगे, आउटर लेयर इज न्यूरिलेमा, और उसके अंदर की लेयर की बात करें तो ये हो जाएगा न्यूरिलेमा बाहर की तरफ, और इसी का अंदर का पार्ट की बात करेंगे तब हो जाएगा माइलिन शीथ. सो माइलिन शीथ एंड न्यूरिलेमा कंसिस्ट बाई स्वान सेल. ओके. इन साइटोप्लाज्म Nissl granules and neurofibrils are present. Nissl granule, granular structure present in cyton and dendron. साइटोन में होगा, डेंड्रॉन में होगा, लेकिन एक्सॉन में नहीं होगा. absent in axon, absent in axon, and it is granular structure consist of ER and राइबोसोम. राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कॉम्बिनेशन से बना होता है निस्ल ग्रैन्यूल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, और सीधे लिखते हैं इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ओके. निस्ल ग्रैन्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. Fibrous structure is called neurofibrils, present in cyton and axon both. Neurofibril. Fibrous structure present in cyton and axon both. cyton में भी है, एक्सॉन में भी. फंक्शन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन नर्व सेल. अगर कोई इम्पल्स डेंड्राइट्स के द्वारा रिसीव किया गया तो अब वह इम्पल्स इस सेल से होते हुए आगे जाएगा, सेल से होते आगे जाएगा.
और यहां जो है नर्व्स एंडिंग्स इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा लास्ट में। दिस इज कॉल्ड टीलोडेंड्रिया एंड दिस इज सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब, ठीक है। तो साइटोन से लेकर के इंपल्स को सिनेप्टिक नोब तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? न्यूरोफाइब्रिन। अब देखिए एक और, ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जहां से साइटोन और एक्सॉन अटैच है, दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। ओके, चलिए तो ये हमने देखा स्ट्रक्चर इसका। अब थोड़ा सा फिर से डिटेल्स में हम देख लेते हैं एक्सॉन का स्ट्रक्चर, सेल प्रोसेसेस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज cell processes, also called neurites। सेल प्रोसेस का दो पार्ट, फर्स्ट इज डेंड्रॉन, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ साइटोन। साइटोन से निकला, ऐसा क्या स्ट्रक्चर बताया मैं, ये साइटोन है तो यहां से जो स्ट्रक्चर निकला, दिस इज डेंड्रॉन। ओके, अ स्मॉल ब्रांच ऑफ साइटोन एंड इट्स फाइन ब्रांचेज आर कॉल्ड, जहां से डेंड्रॉन्स का ही फाइन ब्रांच है, दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। इट्स फाइन ब्रांचेज आर कॉल्ड dendrites। Okay, fine branches are called dendrites। dendrites receive a stimulus, बाहर से यह स्टिमुलस को रिसीव करेगा और साइटोन की तरफ कंडक्ट करता है। इट रिसीव अ स्टिमुलस एंड प्रोड्यूस कंडक्शन, सेंट्रीपेटल कंडक्शन। Centripetal conduction, centripetal conduction means towards साइटोन। बाहर से लिया और किस डायरेक्शन में? साइटोन की तरफ इंपल्स को ट्रांसमिट करेगा। फर्स्ट डेंड्रॉन, सेकंड इज एक्सॉन, इट इज लॉन्गेस्ट ब्रांच। Nice granular scent, neurofibre present, ठीक है। चलिए आगे, इन एक्सॉन, सपोज दैट दिस इज, अगर हम एक्सॉन की बात करें, यही मैं फिगर बताया कि इस तरह से कहीं कहीं माइलिन शीथ है, कहीं माइलिन शीथ नहीं है, दिस लाइक स्ट्रक्चर। और जिस पार्ट पर माइलिन शीथ नहीं है, डेट इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर helps in fast conduction of impulse। fast conduction of impulse, जनरली होता क्या है कि ऐसे अगर इंपल्स का ट्रांसमिशन धीरे धीरे इस डायरेक्शन में हो रहा है, किसी एक डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे जा रहा, बट इन केस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ रैनवियर, इंपल्स जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। एक नोड से दूसरे नोड में भी इंपल्स का जंपिंग होता है। दैट टाइप ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड साल्टेटरी कंडक्शन, एंड साल्टेटरी कंडक्शन इज फास्ट कंडक्शन ऑफ इंपल्स।
So we can say node of Ranvier helps in fast conduction of impulse. Okay. At the end of axon, telodendria and synaptic knob present. जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया मैं, दिस इज टीलोडेंड्रिया, और यहाँ पर जो बटन लाइक स्ट्रक्चर है सिनेप्टिक नोब. इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन और फॉर्म्स सिनेप्स. दो नर्व सेल का जंक्शन सिनेप्स कहलाता है, तो सिनेप्स के फॉर्मेशन में सिनेप्टिक नॉब हेल्प करता है. एंड टीलोडेंड्रिया फॉर्म्स एसिटाइल कोलाइन. एसिटाइल कोलाइन helps in transfer of impulse from one nerve cell to other nerve cell. एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में इंडक्शन के कंडक्शन इम्पल्स के कंडक्शन में हेल्प करता है. जनरली फ्रॉम न्यूरॉन नर्व सेल transmission of impulse occurs at the junction of two nerve cell. Junction of two nerve cell is called synapse, but at synapse से microscopic gap is present. दोनों नर्व सेल दूसरे से completely अटैच नहीं होता, बल्कि वहां एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है. अब देखिए कि एक नर्व सेल इधर है, दूसरा नर्व सेल इधर है, और बीच में गैप है. इधर से इधर ट्रांसमिशन होना है. ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अकर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन द फॉर्म ऑफ आयंस. तो आयंस के फॉर्म में इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, और यहाँ गैप है. अब इस गैप में ट्रांसमिशन कैसे होगा? तो वही यहाँ सीक्रेट होता है एसिटाइल कोलाइन. एसिटाइल कोलाइन इसी फील्ड में गैप में प्रेजेंट होगा, एंड दैट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर नर्व सेल्स. ओके, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफर करने में रोल किसका है? एसिटाइल कोलाइन का है. इसी का नाम देते हैं एसिटाइल कोलाइन. ठीक है, चलिए, तो ये हो गया न्यूरॉन की बात. न्यूरॉन का जो दो पार्ट हमने बात किया, साइटोन एंड सेल प्रोसेसेस. अब हमको देखना है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. On the basis of a structure, neuron is of three types: unipolar, bipolar, multipolar. On the basis of a structure, neuron is of three types: unipolar, bipolar, multipolar. A structure unipolar, bipolar and multipolar. Okay, unipolar, bipolar, multipolar. Unipolar means single branches. Unipolar means single branch. Bipolar, two branches. Multipolar, many branches. Unipolar, only one branch. ठीक है, जैसे कि अगर ये साइटोन है, यहां से एक ब्रांच निकला, दिस लाइक, और यहीं पर फिर यही डेंड्रॉन का भी काम करेगा, यही एक्सॉन का भी काम करेगा. दैट इज कॉल्ड यूनिपोलर. ठीक है, यूनिपोलर प्रेजेंट इन नर्व सेल, नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रायो. embryonic stage. Okay. Second is bipolar. Bipolar means two branches. Two branches. Suppose that this is cell. अब एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर. One acts as axon, other acts as dendron. एक ब्रांच एक्सॉन की तरह बिहेव करेगा और एक डेंड्रॉन की तरह बिहेव करेगा. ठीक है ना. एग्जाम्पल, नर्व ऑफ रेटिना. इन रेटिना ऑफ आई बाइपोलर न्यूरॉन इज प्रेजेंट.
and multipolar means many branches. In many branches, one axon and many dendron. जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, दिस लाइक सो मेनी डेंड्रॉन्स एंड ओनली वन एक्सॉन. तो एक एक्सॉन है, बहुत सारा डेंड्रॉन है, इसका नाम देंगे multipolar. Mostly body parts, multipolar neuron present in our body. So these are three types of neuron on the basis of a structure. Okay. Now see on the basis of function. On the basis of function, neuron is of three types also. फंक्शन के आधार पर भी न्यूरॉन को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, न्यूरॉन इज ऑफ 3 टाइप्स. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, पहला सेंसरी, मोटर, इंटरन्यूरॉन, also called relay neuron. Okay, the main function of nerve cell or neuron is transmission of impulse. Transmission of impulse from one body part to another body parts. From one body parts to another body parts. Okay. अब देखिए, जैसे मान लिया जाए एक कंट्रोलर है. This is the controller of our body. Controller means brain or a spinal cord, and this is sense organ such as eye, ear, nose, tongue, skin. They are the 5 sense organs. Sense organ receive the stimulus of different stimulus. Receive impulse of different stimulus. Touch, साउंड, लाइट, है ना, अलग अलग का क्या करेगा, यह स्टिमुलस रिसीव करेगा. अब यहां से वह स्टिमुलस पहले जाएगा कहां, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक. तो सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक लाने वाला सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन, न्यूरॉन दैट कैरीज द इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू कंट्रोलर. Sense organ to controller is called sensory neuron. Okay. In controller, अब यहां कुछ मैसेज आया. In controller, in brain and spinal cord, analysis of impulse takes place. जो नोटिस आया, जो इंफॉर्मेशन आया, अब उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, यहां एनालिसिस होगा. ओके. और एनालिसिस होने के बाद फिर ऑर्डर पास होगा, और ऑर्डर पास हो कहां तक जाएगा, इफेक्टर तक, जहां की एक्शन होना है. इफेक्टर मींस ऑर्गन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन. तो सेंस ऑर्गन, सॉरी, कंट्रोलर से इफेक्टर तक ले जाने वाला मोटर. नर्व सेल न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम कंट्रोलर टू इफेक्टर इज कॉल्ड मोटर. एंड द न्यूरॉन दैट कनेक्ट सेंसरी टू इफेक्टर. इधर है मोटर और इधर है सेंसरी. तो सेंसरी और मोटर को कनेक्ट करने वाला इंटरन्यूरॉन, रिले न्यूरॉन. एंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, रिले न्यूरॉन इज प्रेजेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिसिस ऑफ इम्पल्स. एज फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं भाग रहे हैं, भागते भागते पैर में चल रहे हैं, चलते चलते पैर में अगर कांटा चुभ जाता है, रिजल्ट क्या होता है, चलना बंद हो जाता है. चलना बंद होता है यानी कि यहां ब्रेन से मैसेज गया. सबसे पहले स्पाइन, कांटा का इंपल्स लिया, कौन, लेग लिया, वह काम किया सेंस ऑर्गन की तरह. वहां से मैसेज गया ब्रेन के पास सेंसरी के द्वारा. ब्रेन फिर ऑर्डर दिया, वह ऑर्डर मोटर न्यूरॉन के द्वारा इफेक्टर मींस लेग में गया. लेग का आगे बढ़ना बंद हो गया. एक कंडीशन है. लेकिन दूसरा एग्जांपल लेते हैं. आप किसी एनिमल के डर से भाग रहे हैं, पीछे आप आगे हैं, आपके पीछे एनिमल है, और वैसे कंडीशन में कांटा चुभ जाए, क्या आप रुकेंगे? नहीं रुकेंगे. यानी वहां भी सेंसरी ऑर्गन पहले मैसेज पहुंचाया ब्रेन तक, वहां से मोटर न्यूरॉन ले गया लेग्स तक, लेकिन लेग का ऑर्डर क्या गया, रुकना नहीं है, आगे कंटिन्यू बढ़ते जाना. तो जैसा यह एनालाइज करेगा, जैसा ऑर्डर देगा, वैसा ही काम करेगा. तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ
function. Okay, next, now see types of axon. Axon is of two types: myelinated and non-myelinated, also called medullated and non-medullated. It means myelin sheath present, that is called myelinated. इसमें क्या क्या लेयर होगा? तो एक लेयर होगा myelin sheath का, and second layer is neurilema. Myelin sheath inner side, neurilema outer side. In this type of axon, myelin sheath is absent, so only neurilema is present. Okay, node of Ranvier present, यहाँ present node of Ranvier, node of Ranvier present, absent. Fast conduction of impulse due to presence of myelin sheath, and here slow conduction. ठीक है ना, फास्ट कंडक्शन होगा और स्लो कंडक्शन। एक और याद रखिए कि जैसे अगर ये एक्सॉन है, एक्सॉन में नोड ऑफ रेनवियर है, इन दिस केस ऑफ माइलिनेटेड लैटरल ब्रांच ऑफ एक्सॉन डेवलप्स ऑल्सो, लैटरल ब्रांच भी डेवलप हो सकता है, दिस लाइक and lateral branch is called collaterals. So collateral present in medullated, collateral present in non-medullated, collateral absent. Okay, so these are the two types of axon, and on the basis of axon there are two types of neuron or nerve cell. ओके, तो आज हम लोग नर्वस सिस्टम का एक सेल न्यूरॉन के बारे में देखा, बाकी तीन सेल न्यूरोगिरिया, न्यूरोसेक्रेटरी सेल एंड एपेंडिबल सेल इन नेक्स्ट वीडियो. ओके.